Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important problems of the topic plane for MSTCET. In the last lecture we have discussed, in the last two lectures we have discussed all the important formulas of the topic plane for MSTCET, and now in this lecture we will solve these important MCQs, important problems for MSTCET. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So students, without wasting time, here are my MCQs, important MCQs of the topic plane, and the first MCQ is on the board for you. And in this question I have to find the vector equation of the plane which is at a distance of 5 units from the origin and whose normal vector is 2i plus j plus 2k. So I have given the distance of the plane from origin and I have given a normal vector to the plane. So students, whenever we have given the distance of the plane from origin, this problem is on the normal form of the plane, and normal form of the plane is r bar dot n cap equal to p. इन सभी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इससे पहले के दो वीडियो आप देखिए ऑफ द टॉपिक प्लेन, सारे फॉर्मूले आप समझ लीजिए, तभी आपको प्रॉब्लम्स भी समझ में आएंगे. सो हियर I have given the distance of the plane from origin and I have given the normal vector. So normal vector of the plane is denoted by n bar, and this normal vector is given as 2i plus j plus 2k. Now the equation of the plane in normal form is r bar dot n cap equal to p. तो यहाँ पे p क्या होता है? p इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. तो हमें क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज 5 units. सो दिस p इज इक्वल टू 5 एंड दिस r bar dot, I have to write the unit vector n cap, but I have given the normal vector, so I have to write its unit vector. So unit vector is n bar upon mod of n bar. So n bar vector is 2i plus j plus 2k, 2i plus 2j plus 2k upon its magnitude. So its magnitude is square root of 4 plus 1 plus 4. तो इसका magnitude कितना है? 3. So this is the vector equation of the plane in normal form, and this is n cap, this is 5. So multiplying both side by 3, we get the vector equation of the plane as r bar dot 2i plus j plus 2k equal to 15. So this is the required vector equation of the plane whose distance of the plane from origin is 5 and normal vector is 2i plus j plus 2k. So this is in the option B. So this is the question number 1. Now we will solve the next question number 2 of the topic plane for MHTCET. So see in the question number 2 on the board, coordinates of foot of the perpendicular from origin to this plane. Foot of the perpendicular के coordinates पूछे हैं and perpendicular is drawn to the plane from origin. Okay, so my given equation of plane is 2x plus 3y plus 6z equal to 49, and let this is the plane and a perpendicular is drawn from origin to the plane. Let m be the foot of the perpendicular. So I have to find the coordinates of this point m. So if perpendicular is drawn from origin, then coordinates of this point m are LP, MP, NP, where P is the length of the perpendicular of the plane from origin. P is the length of the perpendicular of the plane from origin, and L, M, N are direction cosines of the normal. So first we will find the direction cosines of the normal of this plane.
So direction ratios of normal are, normal के direction ratios क्या हैं? 2 3 6, and now we will find the direction cosines of normal. So if the direction ratios of a line are ABC, in then its direction cosines are a by root of a square plus b square plus c square, b by root of a square plus b square plus c square, and c by root of a square plus b square plus c square. So first I will find the value of root of a square plus b square plus c square, that is root of 2 square 4, root of plus 3 square 9 plus 6 square 36. So it is square root of 49 7. So direction cosines are 2 by 7, 3 by 7 and 6 by 7. Now I can find this foot of the perpendicular. So this direction cosines are L, M, N, and I have to find the length of the perpendicular of this plane from origin. So length of the perpendicular from origin is given by, उसका फार्मूला क्या है? d by root of a square plus b square plus c square. d by root of a square plus b square plus c square, तो मेरा d कितना है? 49 upon root of a square plus b square plus c square is again 4 plus 9 plus 36. 4 plus 9 plus 36. a square plus b square plus c square, d by root of a square plus b square plus c square. See the formula of the perpendicular of the plane from origin. So it is 49 by 7. 49 by 7 equal to 7. So this d is p, that is the length of the perpendicular from origin. तो foot of the perpendicular के coordinates L is 2 by 7 into p is 7. M is 3 by 7 into p is 7. N is 6 by 7 into p is 7. Therefore the foot of the perpendicular is 7. 7 will get cancelled everywhere. 2 3 6 is the foot of the perpendicular of this plane drawn from the origin. So here option C is correct to this question. Now see the question number 3. See the question number 3 of the topic plane for MHTCT. तो स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपको मेरे फॉर्मूलेज के वीडियो अच्छी तरह से देखने होंगे. देन ओनली यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन फॉर प्लेन ऑफ द टॉपिक प्लेन फॉर MHTCT. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या दिया है? मुझे पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. Direction cosines of the normal to the plane, and equation of plane is given in vector form. R bar dot 6i plus 8j plus 24k equal to 13. I have to find the direction cosines of the normal to the plane. तो मुझे इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. आई विल राइट दिस इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म. r bar dot n cap equal to p. So this is r bar dot n bar equal to p. So इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ. नॉर्मल फॉर्म इज r bar डॉट, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. 6i प्लस 8j प्लस 24k बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये n बार वेक्टर है. आई एम राइटिंग n कैप. r bar डॉट n कैप इक्वल टू p. ये मेरा नॉर्मल फॉर्म है, तो उस फॉर्म में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ. दिस वेक्टर इज n बार. आई हैव टू राइट n कैप. सो दिस इज डिवाइड बाय रूट ऑफ 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 इक्वल टू, सो हियर इज ऑल्सो 13 बाय, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 676, उसका स्क्वायर है. स्क्वायर रूट इज 26. सो हियर द वेक्टर इज r बार डॉट, तो ये मिलेगा 6i प्लस 8j प्लस 24k. आई हैव डिवाइडेड बोथ साइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 676 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26 अपॉन 26 इक्वल टू 1/2. एंड दिस वेक्टर equation in normal form is 6 by 26i plus 8 by 26
जे प्लस, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये डायरेक्शन रेशोज हैं, सो इसको डिवाइड करो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन मैंने ये मेथड इसलिए बताई कि आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को कैसे लिखने का है इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल हो तो दिए ही है, और इससे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल मिलेंगे। 3-4 क्वेश्चन के आंसर इस मेथड से मिलते हैं। सो इट इज़ 24/26 के इक्वल टू 1/2। नाउ दिस इक्वेशन इज r bar डॉट n कैप इक्वल टू p। सो हियर LMN, अब ये LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे 6/26 यानी 3/13, 4/26 यानी 4/13, 8/26 यानी 4/13 एंड दिस इज 12/13। और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा p 1/2। नॉर्मल फॉर्म क्या है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। सो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3, 4, 12/13, first option is correct. So this was the question number 3. Now we will solve the next question number 4 of this topic plane for MHT CT. So in the next question I have to find the foot of the perpendicular दिया है, foot of the perpendicular drawn from origin to the plane is 4, -2, -5. I have to find the equation of plane. So this is the plane whose foot of the perpendicular from origin, foot of the perpendicular from origin is given, and this foot of the perpendicular has coordinates 4, -2, -5. Okay, and I have to find the equation of the plane in Cartesian form. Okay, so this is perpendicular, it means this is the normal to the plane. अब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हम लिखेंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 यानी 4, -2, -5। सो डायरेक्शन रेशोज अगर मुझे मिल गए हैं नॉर्मल के तो ये मेरा n बार वेक्टर हो गया। सो n बार वेक्टर क्या होगा 4i -2j -5। ओके, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा r बार डॉट n बार, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर n बार, पासिंग थ्रू पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज a bar and perpendicular to vector n bar. So equation of plane is r bar dot, what is my n bar, 4i -2j -5k equal to a bar dot n bar. तो a bar dot n bar देखिए, ये a bar वेक्टर है, n bar वेक्टर है, 4 × 4 कितना होगा 16 प्लस -2 × -2 4 प्लस -5 × -5 25. सो द इक्वेशन बिकम्स, अब वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का है, रिप्लेस ijk बाय xyz, क्योंकि अगर इस वेक्टर r बार को मैं, r बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, सो इस वेक्टर r बार को मैं क्या लिख सकता हूँ xi प्लस yj प्लस zk, और इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा 4x -2y -5z इक्वल टू 20 प्लस 25 45, and this is the equation of the plane whose foot of the perpendicular from origin is this. So I think this is in the second option. So second option is correct, option B is correct. This is the question number 4. Now we will solve the next question number 5 of this topic plane for MHT CT. So in this question I have to find the equation of the plane through the through these 2 points, and the plane is given to be parallel with y-axis. So देखिए students, how to find the equation of plane in this condition. So most important formula of the topic plane to find the equation of the plane is
equation of the plane passing through the point x1 y1 z1 and parallel to the two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is। वही फार्मूला मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में मुझे पॉइंट भी मिलता है और दो पैरेलल लाइंस भी मिलती है। तो इसका यूज़ मैं कैसा करूँगा इस क्वेश्चन में, देखिए। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। I have to find the equation of plane passing through these 2 points. This is the plane which is passing through these 2 points. One point is 1 minus 1 1 and let second point B has coordinates 3 2 3 2 4. So plane is passing through these 2 points and plane is parallel to y-axis. So let this is the y-axis. So plane equation of plane passing through point x1 y1 z1। अब मैं इस टाइम पे फार्मूला लिख रहा हूँ, इसके बाद में जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आई विल नॉट राइट द फार्मूला, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऐसा है, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। तो ये किस प्लेन का इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू द टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इसी फार्मूलेस का यूज़ करेंगे हम। सो दिस लाइन AB इज इन द प्लेन, AB इज इन द प्लेन, इट मीन्स AB इज पैरेलल टू प्लेन। AB लाइन प्लेन में है, यानी AB प्लेन को पैरेलल है। तो AB के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB? देखिए 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 2 2 माइनस माइनस 1 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। सो दिज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB। अब y एक्सिस इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्लेन, तो y एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या है? 0 1 0। अब क्वेश्चन कैसा मिल गया मुझे, देखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, या AB पॉइंट ले सकता मैं x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 2 3 3 एंड 0 1 0। सो यूजिंग दिस फार्मूला आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मैं मैक्सिमम टाइम में यही देखता हूँ, एक तो मुझे नॉर्मल वेक्टर मिलना चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर भी मिल सकता है। इसका AB का और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मुझे नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। एक तो नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट मिलना चाहिए, नहीं तो पॉइंट दिया तो दो पैरेलल वेक्टर मिलने चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व द टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x माइनस x1 इज 1 y minus minus 1 y plus 1 x minus x1 y minus y1 z minus z1, this is x1 y1 z1 x minus 1 y plus 1 z minus 1 a1 b1 c1, यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB 2 3 3 a2 b2 c2, यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ y एक्सिस, बिकॉज y एक्सिस ऑल्सो पैरेलल टू द गिवन प्लेन 0 1 0 इक्वल टू 0। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए एंड द गिवन इक्वेशन इज, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3x माइनस 2z इक्वल टू 1। सो दिस इज इन द ऑप्शन बी। यू हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट एंड योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, यू कैन चेक बाय दिस पॉइंट्स। इस पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं कि प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। So put x equal to 3 1, x equal to 1 3 minus z equal to 1 3 minus 2 1. Again you can check this point, 3 into 3 9 minus 4 into 2 8, 9 minus 8 कितना होगा? 1. So both these points are satisfying this equation. So this is the correct answer to this question. So this was the question number 5. Now we will solve the next question number 6 of this topic, plane for MSTCD. So in the question number 6 I have to find
the equation of plane in which these two lines lie, equation of plane containing two lines, equation of plane containing two lines. So this is the question number 6, and I have given the equations of lines as x minus 5 by 4 is equal to y minus 7 by 4 is equal to z plus 3 by minus 5 and x minus 8 by 7 is equal to y minus 4 by 1 is equal to z minus 5 by 3. Find the equation of the plane containing these two lines. अगर प्लेन में ये दो लाइन्स हैं, ओके, so this line is, first line is passing through the point 5, 7, minus 3, and direction ratios of this line are 4, 4, minus 5. Direction ratios of second line are 7, 1, 3. अब देखिए प्रॉब्लम में किस तरह से बनाता हूँ. Equation of the plane passing through the point x1, y1, z1 and parallel to the lines having direction ratios a1, b1, c1, a2, b2, c2. फिर से देखिए, equation of plane passing through the point x1, y1, z1 and parallel to two lines having direction ratios a1, b1, c1 and a2, b2, c2. लाइन्स इस प्लेन में है, यानी दोनों लाइन्स उस प्लेन को पैरेलल है. सो यूजिंग दिस कंडीशन आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस, ए बी पॉइंट ले सकते हैं आप, कौन सा भी एक पॉइंट लीजिए. यू कैन ऑल्सो टेक द पॉइंट 8, 4, 5 एंड यू कैन ऑल्सो टेक द पॉइंट 5, 7, माइनस 3. सो x माइनस x1 बनेगा 5, y माइनस y1 इज 7, z माइनस z1 यानी z प्लस 3, a1, b1, c1, 4, 4, minus 5, a2, b2, c2 is 7, 1, 3 is equal to 0. And you solve this determinant. इस determinant को आप solve कीजिए. You will get the answer 17x minus 47y minus 24z plus 172 equal to 0, and this answer is in the option 1. So this was the question number 6. Now see the next important question of the topic plane for MSTCT, question number 7 on the boards. बोर्ड पे आप देखिए question number 7. Equation of the plane passing through this point and making equal intercepts on the coordinate axis. ओके, तो इसमें हमें प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, because something is given about the intercepts of the plane on coordinate axis. So intercepts are equal on x axis, y axis and z axis. तो प्लेन का इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे इस टाइप में. लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन लेंगे हम x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z बाई c इक्वल टू 1. हियर x इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज a, दिस इज y इंटरसेप्ट b, दिस इज y इंटरसेप्ट c. बट दिस all these intercepts are equal. a इक्वल टू b इक्वल टू c, सब इक्वल है. इक्वल इंटरसेप्ट से x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट इज इक्वल. तो मैं इस इक्वेशन को x अपॉन a प्लस y अपॉन a प्लस z अपॉन a इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ. ऑल द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल. a इक्वल टू b इक्वल टू c. नाउ दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3. अगर ए प्लेन इस पॉइंट से पास होता है तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो देयरफॉर पुट x इक्वल टू 2, 2 बाई a, y इक्वल टू -1 बाई a प्लस z इक्वल टू 3 बाई a इक्वल टू 1. सो 2 - 1 इज 1 प्लस 3, 4. तो a की वैल्यू मुझे कितने मिलेगी? 4. अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे प्लेन का इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ इन द लास्ट ऑप्शन डी. एंड हम पॉइंट भी चेक कर सकते हैं.
स्टूडेंट्स एक बात आप प्लेन के प्रॉब्लम्स में जानिए, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इक्वेशन अगर पूछते हैं प्लेन का और पॉइंट कभी देते हैं तो यू कैन चेक द ऑप्शंस। अगर आपको बाय चांस कभी नहीं समझ में आता है तो यू कैन चेक द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन पॉइंट किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो हियर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करके देखिए। 2 - 1 1, 1 + 3 is 4, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस ऑप्शन डी। तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, पहले 3 ऑप्शन को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स प्लेन टॉपिक थोड़ा बड़ा है, उसके कंटेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसके हम 2 लेक्चर्स लेंगे या 3 लेक्चर भी ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा है, फार्मूले ज़्यादा है। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द बोर्ड, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। प्लेन का एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन्स आर r vector dot I minus 2j plus 3k plus 4 equal to 0. This is the one equation of the plane, and another equation of the plane is r dot 2I plus j minus 3k plus 7 equal to 0. So I have to find the equation of angle between these 2 planes. So this is n1 vector, n1 vector है मेरा I minus 2j plus 3k। n2 vector क्या है, this is n2 vector, r dot n1 equal to p1, r dot n2 equal to p2। so n2 vector क्या है 2I plus j minus 3k। ओके, सो कॉस ऑफ थीटा क्या फॉर्मूला है, n1 डॉट n2 बाय मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स। सो n1 डॉट n2 देखिए, 2 × 1 2 प्लस 1 × -2 -2 -3 × 3 -9 बाय मॉड ऑफ एक्यूट एंगल। अब मॉड ऑफ n1 क्या है, व्हाट इज मॉड ऑफ n1 वेक्टर। So it is root of 1 plus 4 plus 9 root of 14 mod of n2 वेक्टर भी हम निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ऑफ 4a² plus bx² plus y² plus z²। so that is also root of 14। so this is mod of n1 root of 14 into root of 14। so it is 9 by 14। so cos of theta is 9 by 14, and therefore angle theta is cos inverse of 9 by 14, which is in the last option D। so this was the problem on angle between the 2 planes, problem question number 8। now see the next question number 9। see the question number 9 on the board। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन पढ़ने का है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने के हैं तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और बाद में आप आंसर चेक कर सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स को पहले से सॉल्व कर चुके हैं तो आप जस्ट रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम सिर्फ रिवीजन ही फॉर्मूलेज की रिवीजन चाहिए तो पहले 2 वीडियोस आप देखिए। ये पूरे जितने लेक्चर से MST CET के कोई स्टूडेंट्स को फॉर्मूले रिवाइज करने के तो फॉर्मूले के वीडियो देख सकता है, किसी को प्रॉब्लम्स ही चाहिए तो प्रॉब्लम्स के वीडियोस भी देख सकता है। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। इफ द प्लेन्स, क्वेश्चन नंबर 9, if these 2 planes are parallel, if these 2 planes are parallel then the value of lambda and mu, lambda और mu की वैल्यू पूछी है, and given these 2 planes are parallel in which first plane is r dot 2I
माइनस लैम्डा जे प्लस के इक्वल टू 5 और दूसरा प्लेन है मेरा आई आर डॉट दूसरा प्लेन है आर डॉट 4i माइनस जे प्लस म्यू के इक्वल टू 5 and I have given that these two planes are what? Parallel. These two planes are parallel. So students, angle between the planes is same as the angle between the normals. जितना प्लेन का एंगल होगा उतना ही नॉर्मल्स का एंगल होगा. सो अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होगी, अगर प्लेन्स पैरेलल है तो नॉर्मल्स भी पैरेलल होगी. तो ये दोनों नॉर्मल वेक्टर पैरेलल होगी. So this is n1 vector and this is n2 vector. Normal vectors are also parallel. So n1 vector is parallel to n2 vector because the given two planes are also parallel. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में होंगे, कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में होंगे. सो इट इज 2/4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय माइनस 1 is equal to 1/μ. प्रॉब्लम इज सॉल्व. वेरी इजी. कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए. ये जो 3 टॉपिक्स है इसमें वेक्टर के अंदर आता है डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज, लाइन, प्लेन और वेक्टर, या ऐसे टॉपिक्स में इसमें आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगी तो आपको किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. So this is lambda equal to 1/2 mu equal to 2. So this is the answer to this question. Last option is correct. See the next question number 10. See the next question number 10. And the question number 10 क्या कहता है? See the question number 10 on the board. Vector equation of the plane passing through 3 points. 3 पॉइंट्स दिए हैं एंड आई हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड द गिवन पॉइंट्स आर. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 2 1. बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए 2 - 1 -3. सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से 0 1 5. ओके. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स is r dot ab cross ac equal to a dot ab cross ac. प्लेन का इक्वेशन क्या है? r dot ab cross ac equal to a dot ab cross ac. This is the formula, that is the vector equation of the plane passing through 3 points abc. इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करेंगे और कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 equal to 0. Either you solve by this method or you solve by this method. So we will solve by this method. So equation of the plane becomes x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 2 minus 1 1 minus 1 plus 2 is 1 minus 3 minus 1 is minus 4. अब x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस x3 माइनस x1. सो 0 माइनस 1 इज माइनस 1 1 प्लस 2 इज 3 5 माइनस 1 इज 4 इज इक्वल टू 0. ओके. x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1. और यू कैन यूज़ दिस फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म. किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर. लेकिन प्रैक्टिस जिस फॉर्म की किसी स्टूडेंट्स की कोई मेथड से प्रैक्टिस हो जाती है तो उसे उसी मेथड से सॉल्व करना चाहिए. आई जनरली अवॉइड्स द वेक्टर इक्वेशन
ओनली आई यूज़ द आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन. सो दिस डिपेंड्स अपॉन योर हैबिट, कौन सी आप मेथड यूज़ करते हो. तो दिज आर द वैल्यूज. इसको आप सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट को and you will get the answer 4x plus z equal to 5. अब इस इक्वेशन को मैंने डिटर्मिनेंट की मेथड यूज़ की है कार्टेशियन फॉर्म, इसको मुझे कन्वर्ट करने का है वेक्टर फॉर्म में. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको यह आंसर मिलेगा. इसका वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखने का है, r डॉट 4x की रिप्लेस करो i प्लस जेड को रिप्लेस करो के से. ओके, वेक्टर और कार्टेशियन इजीली लिख सकते हैं. वेक्टर का कार्टेशियन, कार्टेशियन का वेक्टर. आई जे के को रिप्लेस करने का है एक्स वाई जेड से. ओके, आर डॉट लिख के. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज इन द ऑप्शन सी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई प्लेन है, अगर मेरे पास कोई प्लेन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -10. अगर इसको मुझे वेक्टर में लिखने का है तो मैं लिखूँगा r डॉट, अब लिखूँगा 2i प्लस जे माइनस के इक्वल टू -10. तो वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन इजीली चेंज कर सकते हैं, या इसलिए आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए. अगर आपको वेक्टर इक्वेशन पूछा है तो आप कार्टेशियन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्टेशियन को इजीली हम वेक्टर में चेंज कर सकते हैं. सो दिस वाज 10. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या इम्पॉर्टेंट MCQs, कुछ भी कहिए, रियली इम्पॉर्टेंट है. सो सी द नेक्स्ट 11 ऑफ द टॉपिक प्लेन. व्हाट इज गिवन इन द 11? अ प्लेन मैक्स, वेरी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है. आपको फार्मूला अगर याद है तो इसका आंसर 2 ही स्टेप्स में मिलता है. A plane makes non-zero intercepts ABC on the coordinate axis, then equation of the plane is. वाओ, कितना सिंपल है. इसका फार्मूला ही हमें पता है. These are my coordinate axis x, y, z axis. Okay. This plane cuts the coordinate axis. A plane makes intercepts, non-zero intercepts ABC. If this point are ABC, x intercept A है, x intercept अगर A है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a0 0, y इंटरसेप्ट b है तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 b 0, OC y z इंटरसेप्ट अगर c है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 c. सो हियर इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर a b c. तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्ट फार्मूला है इंटरसेप्ट फॉर्म, डायरेक्ट फार्मूला है इंटरसेप्ट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose x intercept is a, y intercept is b and z intercept is c is x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. डायरेक्ट लिख सकते हैं. या फिर आपको फार्मूला नहीं याद में आता है तो आपको 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. a0 0 0 b 0, a0 0 0 b 0 0 0 c, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3. फिर फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा. सो इट इज़ बेटर टू लर्न दिस इंटरसेप्ट फॉर्म. इसको ध्यान में रखिए. इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू ए बी सी. मल्टीप्लाइंग बाय ए बी सी से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है. अब इसका वेक्टर फॉर्म इजीली लिख सकते हैं. आर डॉट बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के इक्वल टू ए बी सी, एंड दिस इज इन द थर्ड ऑप्शन सी. ओके, सो दिस वाज 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए ऑन द बोर्ड. सो व्हाट इज गिवन? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है और प्लेन का इक्वेशन मुझे किस फॉर्म में दिया है.
आप प्लेन का इक्वेशन देख के बताइए, व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ द प्लेन? लैम्डा इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k. This is the parametric form of the plane passing through the point A and parallel to vector B. This is the parametric form of the plane passing through the point A and parallel to two non-zero vectors B and C. R bar equal to A bar plus lambda times B bar plus mu times C bar. तो अगर इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे B वेक्टर इज दिस, C vector is this, but there is not a vector. It means plane is passing through origin. Plane is passing through origin. Plane origin से पास होता है. So plane is passing through origin, and is plane is parallel to two lines. Plane is parallel to two lines whose direction ratios are, whose direction ratios of lines parallel to plane are, ये किस प्लेन का इक्वेशन है? पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी. सो बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस. तो ये पैरेलल वेक्टर से, तो इनके डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? 1 1 -1 एंड 1 2 3. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, फिर से वही फॉर्मूला, x - x1 y - y1 z - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0. सो x - x1 0, x - 0 x, y - 0 y, z - 0 z, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0. इसको आप सॉल्व करते बैठिए. आई विल नॉट सॉल्व द डिटर्मिनेंट. आंसर इज 5x minus 4y plus z equal to 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. एक बार पॉइंट चेक कर लेते हैं. ओके, ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई करता ही है. एक फिर से चेक कर सकते हैं, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? 5 - 4 1. और पैरेलल लाइन कौन सी भी एक लाइन ले लो. इफ दिस लाइन इज पैरेलल, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? 1 1 -1. तो ये परपेंडिकुलर, ये लाइन इस नॉर्मल को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है क्या नहीं? देखिए a1 a2 कितना है? 5, b1 b2 -4 प्लस c1 c2 -1 0. इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी टेक्निक्स इन द टॉपिक प्लेन, ओनली इन द टॉपिक प्लेन. प्लेन ही ऐसा एक टॉपिक है जिससे आप ऑप्शन के तरफ किसी भी मेथड से जा सकते हो. एक तो पॉइंट सेटिस्फाई करता है, पॉइंट दिया है तो, नहीं तो फिर नॉर्मल प्लेन में जितने लाइन्स हैं उनको परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पे भी कंडीशन चेक कर सकते हैं. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 जहाँ आता है, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो दिस वाज 12. अब हम सॉल्व करेंगे 13 ऑफ द टॉपिक प्लेन फॉर MHTCT. 13 ऑफ द टॉपिक प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 13 क्या दिया है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू दिस टू वेक्टर्स. ये तो वही कंसेप्ट है. ओके, पॉइंट दिया है -2 3 5. प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए एंड पैरेलल टू दिस टू वेक्टर्स. तो वेक्टर्स की इक्वेशन क्या है? 4i + 3k एंड i + j. तो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? 4 0 3 4 0 3. और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? 1 1 0. ओके, so these are the direction ratios of parallel lines 1 1 0 4 0 3 passing through this point. -2 3 5. तो फिर से वही फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ x - x1 y - y1 z - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0.
सॉल्व करो, क्या मिलता है डिटर्मिनेंट? यू विल गेट दिस इक्वेशन एज -3x + 3y + 4z इक्वल टू 35। या फिर इसका आप ओरिजिनल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या है? r डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू a डॉट बी क्रॉस सी। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जिसकी उसकी हैबिट है सॉल्व करने की, दिस इज़ ऑल्सो ईजी, दिस इज़ ऑल्सो ईजी, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। तो मैं हमेशा कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करता हूँ। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? r डॉट -3i + 3j + 4k इक्वल टू 35, एंड दिस is in the second option. So this was 13. Now we will solve the next question number 14 of the topic plane for MHDCD. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू रीजन एंड कंटेनिंग दिस लाइन। ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कंटेनिंग दिस लाइन। ओके, vector equation of the plane passing through origin and containing this line। तो लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? r डॉट i + 4j + k + लैम्डा इंटू i + 2j + k। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a whose पोजिशन वेक्टर इज a बार। सो दिस इज a बार, दिस इज b बार। तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 4 1, एंड लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। इट मीन्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन आर, लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है? 1:1। सो now the line is parallel to these two lines, line is parallel to OA and the line L। तो OA के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशोज ऑफ OA के डायरेक्शन रेशोज यही मिलेंगे, 1 - 0 4 - 0 1 - 0 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। so direction ratios of OA are 1 4 1, एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन आर, लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है? 1:1। तो OA और लाइन आर पैरेलल टू द प्लेन, OA एंड लाइन आर पैरेलल टू द प्लेन। लाइन ऑलरेडी लाइज इन द प्लेन, तो लाइन प्लेन को पैरेलल ही होगी। और लाइन इज प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको ज्वाइन कीजिए, ये लाइन भी प्लेन में होगी, तो दैट विल बी ऑल्सो पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइन्स मिल गए। पॉइंट दिया है इक्वेशन ऑफ प्लेन x - x1 x - 0 y - y1 y - 0 z - z1 z - 0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। सॉल्व द डिटर्मिनेंट और आपको आंसर मिलेगा x - z इक्वल टू 0, x - z इक्वल टू 0। अब इसका लिखने का है आपको वेक्टर फॉर्म। सो r डॉट x को रिप्लेस करेंगे i से, z को रिप्लेस करेंगे k से। r डॉट i - k इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में है? फर्स्ट, r डॉट i - k इक्वल टू 0। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सी द नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द टॉपिक प्लेन फॉर MHDCD। 15 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। See the question number 15, vector equation of the plane which bisects this segment AB at right angle। Okay, 15। तो ये मेरा प्लेन है, ये this plane bisects this segment, this is equal to this, suppose this point is B and this point is P, so AP equal to PB at right angle। तो प्लेन सेगमेंट को राइट एंगली बाइसेक्ट करता है, तो उस प्लेन का एक वेक्टर इक्वेशन पूछा है।
तो ए पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 2 3 6, बी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 4 3 -2, ए बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ए बी को मैं नॉर्मल कह सकता हूँ। ए बी को मैं क्या कह सकता हूँ? नॉर्मल, बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज बोलिए x2 - x1, 4 - 2 is 2, y2 - y1, 3 - 3, 0, and z2 - z1, -2, -6, -2, -6, -8. So the direction ratios of the normal are 1, 0, -4. और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज यानी कौन सा वेक्टर होता है? n वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है? n वेक्टर, क्योंकि मुझे फार्मूला यूज़ क्या करने का है? r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर n बार। ओके, तो मुझे n बार वेक्टर मिल गया, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी a वेक्टर मुझे मिलना चाहिए। सो ए बी, प्लेन बाइसेक्ट्स ए बी, इट मीन्स p is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB and P lies on the AB, P lies on the AB। तो midpoint फार्मूला हम यूज़ करेंगे x1 + x2/2 3, 4 + 2 6/2 3, 3 + 3 6/2 is also 3, 6 - 2 4, so 4 - 6 - 2 4, 4/2 is 2, 6 का हाफ 3, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2। सो प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये बन गया वेक्टर ए बार। ओके, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है? आई + 0j - 4k इक्वल टू ए डॉट एन। अब ये ए है, ए एन है। 3 × 1 इज 3 + 3 × 0 इज 0 + 2 × -4 इज -8। सो प्लेन का इक्वेशन बन गया r डॉट i - 4k इक्वल टू -5। r डॉट i - 4k इक्वल टू -5। सेकंड वन इज करेक्ट। इसको आप कार्टेशियन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 हैविंग डायरेक्शन रेशोज a1, b1, c1। कार्टेशियन फॉर्म क्या है? a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 इक्वल टू 0। पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 having direction ratios a1, b1, c1, then equation of plane is this, then you will get this. So students, if you are very clear to your concepts, आपके concepts clear है तो आप किसी भी problems को easily solve कर सकते हैं। तो पहले आप फॉर्मूले अच्छी तरह से पढ़िए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, देन यू गो फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस देखिए, ईच एंड एवरी वीडियो इज़ वेरी क्लियर विद द फॉर्मूलेज एंड बाय सॉल्विंग एंड फॉलोड बाय द सॉल्विंग इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर MSTCT। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। बाय, मिलते हैं।